تصور کیجیے رات کو آپ جاگ رہے ہیں، چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دماغ میں ایک سوال چل رہا ہے، آخر میرا راستہ اتنا مشکل کیوں جبکہ دوسروں کی زندگی اتنی آسان لگتی ہے۔ آپ نے نیک راستہ چنا، ایمان کو تھامے رکھا، پھر بھی اندھیرے لمحوں نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ یہ آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، نا انصافی محسوس ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن ایک پل رک کر سوچیں، کیا پتہ آپ کو یہ درد بے مقصد نہ ہو؟ شاید یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ واقعی چنے گئے ہیں۔ آپ اس ویڈیو سے ایسی حقیقت محسوس کریں گے جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ اپنے سب سے گہرے کام یا مشن سمجھ لو انہی بندوں کو دیتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جو درد آپ محسوس کرتے ہیں وہ بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے، یہ سزا نہیں بلکہ تیاری ہے۔ ہر امتحان آپ کو تراش رہا ہے، آپ کو اللہ اپنے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے جو صرف آپ پورا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ ہمارے دین کے سب سے بڑے کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بے حد سخت امتحانوں کا سامنا انہوں نے کیوں کیا؟ کیوں اللہ نے انہیں چھوڑ دیا تھا یا وہ انہیں تیار کر رہا تھا؟ جو بھی ایسے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یہ اتفاق نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ آپ یہاں ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے تو یقیناً اس پیغام کو آپ کی ضرورت ہے۔ اب آپ غور کیجئے، آپ کے ہر آنسو، ہر تکلیف اور آپ کی وفاداری سے زندگی جو نبھا رہے ہیں، پھر بھی کیوں تکلیفیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے خاص پلان کا حصہ ہے۔ کیا پتہ اللہ آپ کے ان امتحانوں سے اللہ آپ کو خاص بنا رہا ہوتا ہے، ایک ایسے مشن کے لیے صرف آپ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ ان چھپی ہوئی حکمتوں کو جانیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ نے آپ کو خاص مقصدوں کے لیے چنا ہے۔ کچھ حکمتیں ایسی ہیں۔ نمبر 1، امتحان چنے ہوئے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اونچے پہاڑ سخت ہواؤں کا سامنا کرتے ہیں یا سب سے خطرناک آندھیاں مضبوط درختوں کو آزماتی ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے۔ سب سے سخت امتحان مضبوط سے مضبوط چیز پر ہی آتا ہے، اسے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے اور مضبوط بنانے کے لیے۔ پیارے نبی نے فرمایا، سب سے سخت امتحان انبیاء پر آتے ہیں، پھر ان کے بعد بہترین لوگ پر۔ تھوڑا سوچے، ہر طرف مشکلیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کا یہ اشارہ ہے اس نے آپ کو چن لیا ہے۔ وہ آپ کے اندر ایسی قوت دیکھتا ہے جس کی شاید آپ کو بھی خبر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، چھوٹے تھے تو بھائیوں نے دھوکہ دیا، انہیں کنویں میں پھینک دیا اور غلامی میں بیچے گئے، پھر جھوٹے الزاموں میں قید کیا گیا۔ یہ سب کیا اس لیے ہوا کہ وہ ناقابل تھے؟ نہیں، یہ اللہ کا طریقہ تھا انہیں مضبوط بنانے کا، تاکہ وہ بعد میں ایک قوم کو قید سے بچا سکے۔ اب اپنے حالات پر نظر ڈالیے، شاید آپ کو زندگی میں کئی طرح کی تکلیفیں پہنچی ہو، دھوکہ فریب ملا ہو۔ یہ ناکامی نہیں بلکہ تراشنے کی علامت ہے۔ جیسے سونا آگ میں پگھل کر اور زیادہ چمکدار ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ آپ کے کردار کو امتحانوں سے مضبوط کر رہا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کا آخر بار آپ کو کب ایسا لمحہ محسوس ہوا جب آپ کو لگا کہ ہمت جواب دے گئی ہے، کوئی اپنا ساتھ چھوڑ گیا ہے یا بہت گہرا درد آپ جھیل رہے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جب اللہ آپ سے سب سے زیادہ توکل چاہتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آپ کے یہ امتحان اتفاق نہیں ہے، انہیں اسی نے لکھا ہے جو آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ آپ کو مضبوط، سمجھدار اور اس مقصد کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے بندے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بجائے اللہ مجھے کس کے لیے تیار کر رہا ہے، یہ سوچنے کی عادت ڈالیں۔ جب سب کچھ بکھرتا نظر آئے تو اندر کی طاقت کو کیسے جگائیں؟ آپ کا درد ایک پل ہے مضبوط بنانے کا۔ اس لمحے کو یاد کریں جب درد بہت زیادہ قبضے میں ہو، شاید کسی عزیز کا دھوکہ یا اپنوں کے بیچ رہتے ہوئے بھی تنہائی کا بوجھ۔
उस वक्त आपके मन में ख्याल आया होगा, क्यों मैं ही और क्यों अभी? ये सवाल इंसानियत की अलामत है, लेकिन अल्लाह पहले ही जवाब दे चुका है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह का सबसे खूबसूरत मंसूबा सामने आता है। आपका दर्द बेमकसद नहीं है, इम्तिहान यूं ही नहीं आते। ये एक पुल की तरह होते हैं जो आपको आज की हालत से उठाकर कल की मजबूती तक ले जाते हैं। आपकी रूह इन इम्तिहानों से मजबूत होती है। असल बदलाव तो अक्सर मुश्किल बदलाव में ही आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद करें, डर और परेशानी के आलम में रेगिस्तान में अकेले पहुंचे। वहीं अल्लाह ने उन्हें पैगाम दिया और बड़े काम के लिए तैयार किया। अब आपने आपको याद करें, शायद कोई टूटा हुआ रिश्ता आपको बेकार की तकलीफ से बचा गया। हो सकता है जो नौकरी चली गई हो आपको असली मकसद से दूर ले जा रही थी, या जिस तन्हाई से आप घबराते थे हो सकता है वो आपको अल्लाह के सबसे करीब ले आई हो। लेकिन सवाल ये है कि इस सफ़र को पार कैसे करें? जब सब कुछ गिरता महसूस हो तो अल्लाह की हिकमत को थामे कैसे रहे? यही तो सवाल है जिसका जवाब हम आगे तलाश करेंगे। याद रखें, आपका दर्द आखिरी नहीं, ये तो शुरुआत है उस सफ़र की जब आप अपने मकसद और अल्लाह दोनों के और करीब होंगे। अब उस दर्द की बात करते हैं जो मनसूख होने से आता है, जिस पर आपने यकीन किया वो आपको छोड़ जाए, या कोई मौका जिस पर आपने मेहनत की वो हाथ से निकल जाए। ऐसे वक्त दिल में उदासी और हौसले में कमी आ जाती है। असल में ये उस चीज़ अल्लाह की नई राह दिखाने का ज़रिया है। वो बंद दरवाज़ा जो आपके सामने ताला बनकर खड़ा हो गया, शायद किसी बड़े और बेहतरीन दरवाजे तक ले जाने की वजह बन जाए। हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी हम देखते हैं, जब उन्होंने पैगाम को फैलाना शुरू किया तो बहुतों ने उन्हें ठुकराया। ताइफ के लोगों ने तो उन्हें इतना सताया कि शहर से बाहर निकलवा दिया। सोच कर देखे वो कितना दर्दनाक लम्हा होगा। फिर आगे चलकर यही ना फिर हाँ का ज़रिया बना। मदीना ने प्यारे नबी को अपनाया और इस्लाम तरक्की करता गया। अपने हालात पर नज़र डालिए। अगर आपको कोई दोस्त आपको छोड़ गया तो मुमकिन है कि अल्लाह आपको उस नुकसान से बचाया जो आने वाले वक्त में होता, या शायद वो नौकरी जो नहीं मिली, अल्लाह ने आपको उस राह से हटाया जो आपके लिए सही नहीं थी। कुरान कहता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। याद रखे, मनसूख होना नाकामी की निशानी नहीं, अक्सर ये अल्लाह की रहमत होती है जो हमें उस रास्ते से वापस लाती है जहाँ हमें जाना ही नहीं था। लेकिन कैसे यकीन करें कि जब दिल पर जख्म अभी ताज़ा हो, कैसे आगे बढ़े जब दर्द भुलाए नहीं भूल रहा। याद रखे, हर ना एक तरह की रहमत हो सकती है, हमें संवारने, राह बदलने और अल्लाह के करीब लाने का ज़रिया। आपके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, जब आप तन्हा है तो अपने आप को मजबूत करें। क्या आपने कभी एक भीड़ भरे कमरे में भी अकेलापन महसूस किया है? क्या आपने महसूस किया है कि दोस्त आपकी ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं? मन पूछता है, क्यों मैं अकेला पड़ रहा हूँ? लेकिन ये अल्लाह का तरीका है आपको तैयार करने का। कभी कभी वो हमें तन्हाई में डालता है ताकि हम उस पर और भी गहराई से यकीन करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने असल मकसद को समझ सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिर नज़र डालिए। अपने भाइयों से धोखा खाकर कुएं में अकेले छोड़ दिए गए। वो लम्हा कितना भारी रहा होगा, लेकिन आगे चलकर वही तन्हाई उनका पहला कदम बनी, जिनके बाद वो ऊंचे मकाम तक पहुंच गए, एक कौम को बचाया। शायद आज आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं। मुमकिन है अल्लाह आपको उन लोगों से दूर कर रहा है जो आपके रूहानी सफ़र में रुकावट थे। वो दोस्तियाँ जो ख़त्म हो गई शायद आपकी रूह को थका रही थी। जो आपसे दूर चले गए वो साथ चलने के काबिल ही नहीं थे। कुरान कहता है, और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही काफ़ी है। जब आप तन्हा है, याद रखें कि अल्लाह आपसे दूर नहीं। कई बार तन्हाई हमारी रूहानी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी
हो जाती है। याद करें, हमारे प्यारे नबी हीरागार में तन्हा वक्त गुजारा करते थे। वो तन्हाई उन्हें उस पैगाम की तैयारी करवा रही थी जो आगे चलकर पूरी इंसानियत तक पहुंचा। अगर आज आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो शायद अल्लाह आपको खास किसी मुहिम के लिए तैयार कर रहा है। तन्हाई सज़ा नहीं, ये तब्दीली है। अल्लाह पर गहरा यकीन रखें, ये बात बहुत ज़रूरी है। आपने दुआ मांगी, मेहनत की, सब्र से इंतज़ार किया, फिर भी वो चीज़ हासिल ना हुई जिसकी उम्मीद थी। बस एक खामोशी, कोई जवाब नहीं, कोई इशारा नहीं। दिल में सवाल उठता है कि अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? मैं कब तक यूँ इंतज़ार करूँ? ये दर्द गहरा है, लेकिन रुके। कुरान की इस आयत पर गौर करें। अल्लाह तुम्हारे हक में है, वही तुम्हें अता करता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर आपका वक्त गुजरता गया, फिर आपने जाना जो चीज़ आप पाना चाहते थे वो आपके लिए सही नहीं थी। हो सकता है किसी रिश्ते के टूटने पर बहुत रोए हो, लेकिन आगे चलकर आपको एक बेहतर साथ मिला। किसी नौकरी के हाथ से जाने पर अफसोस किया हो, लेकिन बाद में उससे भी बेहतरीन मौके खुल गए हो। अल्लाह की अनदेखी मुहिम पर यकीन करना आसान नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं अगला कदम क्या है, लेकिन अल्लाह हमेशा हमें सुनता है। बस सही वक्त का इंतज़ार करना होता है। हर बंद दरवाज़ा, हर ना, हर खामोशी, ये सब कहीं ना कहीं एक बड़े मुहिम का हिस्सा है जो आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का वाक़या देखें। फ़िरौन के जुल्म से बचाने के लिए उन्होंने अपने जन्मे बच्चे को टोकरी में रखकर दरिया में बहा दिया। कितना दर्दनाक फ़ैसला रहा होगा, मगर अल्लाह ने वादा किया था। और फिर वही दरिया उस बच्चे को फ़िरौन के महल में ले गया, जहाँ उसकी परवरिश हुई और आगे चलकर उसने अपनी कौम को आज़ाद करवाया। आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिस पल आप समझते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो पल दरअसल किसी नए सफ़र की शुरुआत हो सकती है। जब कुछ हासिल ना हो रहा हो, तब भी अल्लाह पर्दे के पीछे आपका रास्ता बना रहा है। लेकिन कैसे हौसला रखे जब दिल टूटा हो? कैसे सब्र करे जब दुआएं मानो अनसुनी रह गई हो? इसका जवाब है कि अल्लाह पर यकीन रखे। अल्लाह हर दुआ सुन रहा है, लेकिन सही वक्त पर अता करता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। शिकायत करने की बजाय अल्लाह आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। ये सोचें, आपके हर आंसू, हर दर्द में भी एक मकसद छुपा हुआ है। अल्लाह अपनी बेइंतहा हिकमत से आपको तराश रहा है, मजबूत बना रहा है और ऐसे मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां शायद आप आज नहीं, कल खुद पर नाज करेंगे। ये इम्तिहान आपको तोड़ने नहीं आए, बल्कि बेहतर बनाने आए हैं, क्योंकि अल्लाह आपको किसी खास मकसद के लिए चुनता है। वो आपकी हर सांस में मौजूद है। जब मुश्किल लगे और बोझ भारी हो तो याद रखें कि अल्लाह अर्रहमान है, अर्रहीम है, अर्हकीम है। वो अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। अगर इस वीडियो से आपकी तकलीफ़ें कम हुई हो, तो सुकून हासिल हुआ हो, तो शेयर ज़रूर कीजिए। आप कभी तन्हा नहीं है, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। आमीन।